Students, today we start with very important part of this unit, that is finding the roots of a quadratic equation by completing the square. So far we have done one method to find the roots, that is the method of factorization. So let's start with this. So students, be very careful. Now the standard form of quadratic equation, we know we have taken this as ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, this is the standard form of quadratic equation. Now, how to convert this in the form of whole squares? So this is the method, and in this particular method we derive the two formulas. So let's see. So what is the first step now? Whatever may be the coefficient of x square, जो भी हो coefficient of x square, यहाँ पर क्या है, a है. So first step is dividing both side by coefficient of x square. This is the first step, dividing both sides by the coefficient of x square. तो क्या करेंगे हम इसको दोनों साइड्स को a से डिवाइड कर देंगे. Students, very careful about this method. So what we left with x square, because ax square divided by a is x square, bx divided by a is b by ax, then c when divides by a gives c by a, and 0 when divides by a gives 0. So this is the first step. Then the second step is very important one, how to convert this in the form of whole squares. So what do? Up यहाँ पर since we have a plus, now students we have done one identity. Look at this, that is a square plus 2ab plus b square. ये किसके इक्वल था? a plus b whole square. So बच्चों, हमने इस quadratic equation को we have to change it into this form. So कैसे करेंगे इसको? a square, वो already a square है, so we keep it as such. It is x square plus 2 is from the formula. A is first step, x. अब b क्या लेंगे हम? स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो भी यहाँ कोफिशिएंट होगा x का, when you divide it by 2 you will get the b. क्या आ गया यहाँ पर? b by 2a. अब सोच रहे हो हमने ये क्यों किया? बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, this 2 is cancelled with 2, क्या बच जाएगा हमारे पास? सेम वो आ जाएगा. अंडरस्टैंड? एक्चुअली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? वी आर जस्ट डूइंग दिस टू राइट दिस इन दिस फॉर्म सो दैट वी कैन कन्वर्ट देम इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर. सो ये क्या आ गया? 2, ये आ गया a, ये आ गया b. इफ दिस इज b, यू हैव टू राइट द स्क्वायर ऑफ दिस, दैट इज b बाय 2a का स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, देन अब क्योंकि हमने वी हैव राइट दिस ऑफ आवर ओन, हमने खुद से लिखा है, इट इज नॉट गिवन देयर, तो हम इसको इसी से माइनस भी करेंगे. ओके, सो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं. सो व्हाट वी हैव, देन वी लेफ्ट विद प्लस c बाय a इक्वल्स टू 0. बच्चों, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि हमने ये क्यों किया, हमने क्यों लिखा, so that we can write this in the form of a plus b whole square. So अब now I write over here, क्या था हमारा? a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b whole square. So अब देखिए, this is a is x square
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आइडेंटिटी बन गई बच्चों? दिस विल बिकम एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर। हो गया ये। अब आगे क्या बच गया? दिस होल। अब क्या बच गया है? दिस इज बी स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ ट्वाइस a? इट इज 4a स्क्वायर प्लस c बाई a इक्वल्स टू 0। ये स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट था कि पहले हमने ये क्यों लिखा, वाई वी राइट दिस, ये हमने क्यों लिखा था ताकि हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाए। और ये कहां से आया? ये क्या होगा? जो भी x का कोएफिशिएंट होगा, अगर यहाँ पर होता 4 हम लिखते 4/2, अगर यहाँ पर होता 7 वी राइट 7/2, अगर यहाँ पर होता 4/3 वी राइट 4/6। जो भी टर्म होगी उसको 2 से डिवाइड करना है। सिंपल एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब नाउ शिफ्ट दिस to that side. Okay, so x plus b by 2a का whole square. Now this is minus, this will become plus b square by 4a square. This is plus, this become minus. I hope you understand till this point. Now when you solve it, simplify it. So what you get? 4a square and a, its LCM is 4a square. So when you divide this by this, you get 1. 1 into b square is b square. Then when you divide 4a square by a, what you get? 4a. 4a into c is 4ac. So in this way, we are able to get x plus b upon 2a का whole square. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। So when you shift this square to this side, this will become x plus b upon 2a. We know better, when we shift the square to other side, this will become plus minus square root of b square minus 4ac upon 4a square. अब सोच रहे होंगे हमने प्लस माइनस क्यों लिखा? I'll give you example. बेटा मान लो लिखा होता है x square is equal to 4, तो हम यहाँ पर x की क्या वैल्यू पुट करें कि 4 आए? तो बेटा अगर हम x लिखते हैं 2, तो बेटा 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अगर लिखते हैं हम -2, तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। हमें पता है कि चाहे प्लस का स्क्वायर हो या माइनस का स्क्वायर हो, वी विल गेट प्लस। तो वैसे ही अगर हम इसको को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे हम? x is equal to plus minus square root of 4 means plus minus 2। तो यानी कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। तो याद रखना बच्चों, कभी भी अगर हमने स्क्वायर को शिफ्ट करना है टू द अदर साइड, वी हैव टू राइट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दैट वैल्यू। ओके, सो अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना बेटा, अभी हमारा फॉर्मूला बनने वाला है x। नो शिफ्ट this b by 2a to that side, what we get? Minus b by 2a plus minus. Now this is root of b square minus 4ac whole upon। अब हम 4ac को तो हम रूट निकाल सकते हैं। 4 का रूट क्या होता है? 2, और a स्क्वायर का होता है a। तो स्टूडेंट दिस इज the overall formula for this. What is the LCM? 2a, and we get minus b plus minus root of b square minus 4ac. I hope students you all understand this. कहाँ से मिला? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा। देखिए आपके पास when you solve, when you take the LCM, we get twice of a. Now divide this 2a by 2a, you get 1. 1 into minus b is this. This divided by this is 1, we get this. So students, this is how we can find the roots. अब हमारे दो रूट्स बच जाएंगे। कौन सा? एक आएगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a। ठीक है, तो मतलब क्या आ जाएगा? एक हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a, और दूसरा क्या आ जाएगा? माइनस बी माइनस ऑफ रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, आया समझ बच्चे? नो, दिस होल मेथड इज कॉल्ड द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर टू फाइंड द रूट्स, एंड दिस फॉर्मूला जो बना हमारा, दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर आपको टीचर बोलता है फाइंड द रूट्स यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स एंड फाइनली रीच टू दिस पॉइंट। दिस विल बी योर कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। और अगर बोलते हैं टीचर्स कि फाइंड द रूट्स यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, so therefore the quadratic formula is what? X is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon twice of a। तो याद रखना बच्चे, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया that is the quadratic formula, and ये जो होल प्रोसेस था, this is called finding the roots of a quadratic equation by completing the squares. Now, अब इसमें ये क्या चीज है? Where b square minus 4ac is d. Here d stands for discriminant. ठीक है, discriminant। अब ये क्या होता है? With the help of this discriminant, we can further find out whether the roots are repeated roots. Repeated means क्या आंसर सेम आएंगे, और the roots are distinct means आंसर अलग अलग आएंगे, और no real roots exist। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कोई रूट्स ही ना हो, तो वो सब हम कैसे फाइंड करेंगे? With the help of this value of b square minus 4ac। Students, we have just proved that the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are क्या रूट्स थे हमारे? x is equal to minus b plus minus under root of b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये हमारे रूट्स थे। अब हम फाइंड करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, कि किस तरह के रूट्स हमारे बनेंगे, एंड दोज रूट्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर विल डिपेंड अपॉन दिस वैल्यू विच इज अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ सिंस दिस वैल्यू अंडर द रूट, सिंस b square minus 4ac decides whether the roots are real or not, roots real है कि नहीं, thus b square minus 4ac is called discriminant। तो मीन्स अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट द वेदर द रूट्स आर रियल और नॉट, तो क्या करेंगे हम? हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। सो व्हाट आर द कंडीशंस? सो नो कंडीशंस ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। सो फर्स्ट क्या हो जाएगी कि इफ D means discriminant is greater than or equal to 0। याद रखना, discriminant means ये, इसको हम D से नोट करते हैं। अगर discriminant की वैल्यू या तो 0 आएगी या greater than 0 आएगी, then roots are real roots। Real root means it may be rational numbers, it may be irrational numbers, it may be integers, whole numbers, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब here further we have two cases। First, if discriminant is greater than 0, मतलब अगर discriminant की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, तो as I told you रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल, रियल तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग आंसर आएगा।
रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। यानी कि जैसे अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो एक अगर वैल्यू होती है 5, हो सकता है दूसरी 7 आ जाए, आंसर अलग अलग आएगा। नाउ बी, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, अगर ये वाली वैल्यू 0 आती है, सो व्हाट इज रूट ऑफ 0? दैट इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर हम -b में चाहे हम +0 करें या -0 करें, आएगा तो -b ही। तो मीन्स हमारे दो आंसर क्या आएंगे, एक आएगा -b/2a, दूसरा भी -b/2a। तो मतलब क्या हो गया कि इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल, तो होंगे वो, एंड रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड मीन्स इक्वल रूट्स और equal roots. I hope students you understand. Now the last case, if discriminant is less than 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आती है, जैसे मान लो ये वैल्यू आती है -4, तो बच्चों क्या हम स्क्वायर रूट ऑफ -4 या स्क्वायर रूट ऑफ -2 कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है। अप टू क्लास 10 तक तो हम यही बोलेंगे कि these roots are not existing, ठीक है। बिकॉज उसके बाद इन हायर क्लासेस हम इसको भी बोलते हैं, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, दिस इज कॉल्ड आयोटा एंड 2, बट दैट इज नॉट अप टू दिस क्लास 10th। तो हम क्या मानेंगे कि जब भी वैल्यू, रूट की वैल्यू, अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से कम आती है, सो व्हाट वी राइट, देन रूट्स are not real. Students, I hope you understand this. मैं फिर से समझा रहा हूं, हमने पहले फॉर्मूला किया finding the roots using completing the squares. For that you have to explain each and every step. But अगर आपको क्वेश्चन में आता है find the roots using quadratic formula, then आपको फाइनल फॉर्मूला जो था हमारा this one, we have to use this formula directly. और अगर लिखा होता है, अगर इफ इट इज गिवन इन योर पेपर दैट फाइंड द रूट्स इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे हम, देन देयर इज नो नीड टू फाइंड द रूट्स डायरेक्टली, सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस b² - 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू निकाल लो। अगर वो वैल्यू 0 आती है तो रूट्स रिपीट करेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग रूट्स होंगे, ठीक है। तो हम इसको फिर फर्दर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड वी फाइंड द रूट्स। और अगर यहीं पर हमें पता चल जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी आ गई है, तो स्टूडेंट्स देयर इज नो नीड टू फर्दर मूव, जस्ट राइट द रूट्स आर नॉट रियल। अंडरस्टैंड?